Hello students, welcome to my channel. Well, we have already covered two chapters from the unit networking. Our first chapter was all about topology, the types of terminologies used in a network. Well, in the second chapter we saw some of the important concepts from the chapter network and the types of network that can be formed. Well, today in the third chapter from the unit networking, we have taken up the topic on web browsers. We'll be covering in detail the introduction, commonly used web browser, browser settings, add-ons, plugins and cookies. This is strictly as per the revised CBSE syllabus for 2021 board appearing candidates. So students, let us begin. Students, the topic web browser. Well, आप definition note करेंगे क्योंकि ये web browser वाला topic it's more of the theoretical in nature. So you will just write down the important points and explanation in your notebook side by side so that it helps you for your board preparation. Well, the definition, it is a software that helps us in accessing web pages. We all know web browser, right? You have browsed this video using YouTube, which is an application, but suppose you open it in your, suppose if you have Android, you use Google Chrome, suppose you have a iOS, then you use Safari. So web browser is a software that helps us to connect to the internet. It helps us to use web pages. Well, that is a definition that we all know, but in exam you will write that it is a software that helps us in accessing web pages. For example, Mozilla Firefox, Opera Mini, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट यूज़ करने में हम लोग को मदद कर रहा है वो है वेब ब्राउज़र. Well, these 6 are the functions of a web browser. We can have a CBSE 2 marks question from here that define web browser and state its important function. So you just need to write this point. Now suppose if the question is of 4 marks, then please elaborate the points. Okay, so how will we elaborate it? Let us understand. The first function is it is used to render HTML code. Now, what does it mean? Whenever a web browser loads a web page, it processes the HTML code of the web page. Now what does it mean? HTML stands for Hypertext Markup Language. तो जब एक वेब ब्राउज़र किसी वेब पेज को लोड करता है तो वो उसके साथ उसके HTML कोड को प्रोसेस करता है. उस HTML कोड में क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या हाइपरलिंक है, क्या इमेजेस है, क्या मल्टीमीडिया फाइल्स है, वो सबको प्रोसेस करता है और वेब ब्राउज़र आपको उसको डिस्प्लेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है. इमेजिन स्टूडेंट्स कि अगर वेब पेज डिस्प्ले होने की जगह सपोज आपने खोला www.cbse.nic.in CBSE का वेबसाइट, और CBSE का वेबसाइट आने की जगह अगर उसके पीछे लिखा हुआ सारा कोड आने लग जाएगा तो हम लोग कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, राइट? तो ये काम है वेब ब्राउज़र का कि वो उस कोड को प्रोसेस करता है और आपके सामने वेबसाइट एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में, एक डिस्प्लेबल फॉर्म में लाता है जो आप समझ पाते हैं, जो हम लोग सब समझ पाते हैं. So it renders HTML code means when the website gets loaded, it processes the beneath HTML code behind it and then it gives us a website in a displayable form. It sends and receives internet resources. Now using a web browser you can send files to your using a web browser you can send files to your friends. Using a web browser we can receive files from our friends. It is used to access web pages and display them, more or like the first and the third is same of nature. It is used to print documents. I hope you remember when you are on a web browser and we press Ctrl P, we can print any documents that we want to have in a hard copy form. Next is it keeps a record of our daily activity. Well, in a web browser we do have a tag where we can check our activities, you know, which websites you have visited. So it keeps us a track of our activity. And it helps us to install application. Now for example, you want to install the Python software in your laptop. So what we do, we go to the web browser, you know, we go to the Python website in the URL and then from there we go to the download option. So it is ultimately the web browser that is helping us to install our application. So these 6 were the function of a web browser. Please pause the video here and note them. Students, नेक्स्ट टॉपिक है कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र. इसके अंदर 4-5 वेब ब्राउज़र के बारे में हम लोग शॉर्ट नोट्स लिख लेंगे ताकि इस एरिया से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो कवर हो जाए. एक्चुअली आपको पता ही है अभी मार्केट में कोई प्रॉपर बुक अवेलेबल नहीं है आपके सिलेबस के लिए, तो हम लोग इतना पोर्शन ज़रूर कवर कर लेंगे कि उससे बाहर कुछ ना आए. तो सबसे पहले कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र में लिखेंगे गूगल क्रोम. बहुत कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र है, नथिंग मच टू से अबाउट. जस्ट राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स सो दैट यू कैन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैट.
It was developed by Google in the year 2008. Now it is a open and free source application software. ये terms आपके क्लास 11 में रहा था स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं. वेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सॉफ्टवेयर का कैटेगरी जो हम लोग को कुछ यूज़ के लिए, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए या कुछ स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ ओपन सोर्स, ओपन सॉफ्टवेयर एंड फ्री सॉफ्टवेयर, दो टर्म्स है यहाँ पे स्टूडेंट्स. फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, means you do not need to pay any amount to download and use Google Chrome. And open means that the source code is available for those who want to edit the software and publish some improved version. That is meant by open source. So open and free software means it is free of cost and the source code is available for the common editing and the upgrading of the software. Next, it runs on an operating system like Mac, Windows, Linux. So it runs on all these types of operating system and it is a very popular software which has a very high performance. Students, हम लोग और एग्जाम्पल्स में ऐड करेंगे. Mozilla Firefox, Apple Safari और एक दो लिखना है हम लोग को. वेल Mozilla Firefox हम लोग जानते हैं कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. अब फ्री का मतलब यहाँ पे हुआ इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. ओपन सोर्स मतलब सोर्स कोड इज अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन and application software means it is used for variety of purposes. So it is also a free and open source application software. It was developed by Mozilla Corporation and Mozilla Foundation in the year 2002 and it works on a variety of operating systems like Microsoft Windows, Mac, Linux and all that. Next you will write down about Apple Safari. Well, it is a free, now you see it is a free here means free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पे? अगर आपके पास एप्पल ओएस है, मैक ओएस है, तभी आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. एंड क्लोज्ड, वो सॉफ्टवेयर ओपन था, ये क्लोज्ड है. क्लोज्ड का मतलब हुआ यहाँ पे कि सोर्स कोड इज़ नॉट अवेलेबल इजीली, इट्स नॉट इजीली, रादर द सोर्स कोड इज़ नॉट अवेलेबल टू बी एबल टू मॉडिफाई फ्रॉम एनीवन. कोई सोर्स कोड हम लोग के पास अवेलेबल ही नहीं है कि हम लोग उसको मॉडिफाई कर पाएँ. ये कंप्लीट प्रोप्राइटरशिप राइट होता है एप्पल का उसके अपने सॉफ्टवेयर्स के ऊपर. सो इट इज़ अ फ्री एंड अ क्लोज सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय एप्पल. इट वर्क्स ऑन iOS and Mac OS. Now it was launched in the year 2003 and it is faster and more energy efficient than any other web browser. Now you must have heard that Apple, they are providing very good software and hardware and the Apple devices and the Apple laptops are very nice. So this is probably one of the reason that you can see here that I have written that the browser Apple Safari is more faster and more energy efficient than any other web browser. Well, you will pause the video and know these points. दो और वेब ब्राउजर स्टूडेंट्स आपको पढ़ना होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ओपेरा. बहुत शॉर्ट नोट्स है ना. It was developed by Microsoft Corporation and integrated into Microsoft Windows OS in all versions. मतलब इसको डेवलप करने वाली कंपनी का नाम था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन और माइक्रोसॉफ्ट के सारे सिस्टम्स के साथ ये इंटीग्रेटेड है. इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1995 and it supports add-on, improved security and power saving features. I don't think that I need to explain all these points. Just note it down in your copy. And next we'll see about Opera. Well, it was developed by a company called Opera Software, obviously as the name suggests. It was also launched in the year 1995. It provides integrated ad blocker. Integrated मतलब सॉफ्टवेयर के साथ ही ये फीचर्स embedded है सॉफ्टवेयर के अंदर. Features like ad blocker, advertisement blocker and sidebar extension for multitasking. मतलब आप ओपेरा सॉफ्टवेयर के अंदर साइड में दूसरा टैब्स खोल सकते हैं और साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग कर सकते हैं बहुत सारे टैब्स के ऊपर. It is compatible with Microsoft Windows, Mac OS and some older versions of Linux. जो न्यू वर्जन है लिनक्स में उसके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है. सो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का टॉपिक था कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर्स के ऊपर. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ब्राउजर सेटिंग्स. तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले खोलें इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउज़र. इसके सेटिंग्स को चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ ऑप्शंस में जाएंगे, फिर हम लोग सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और फिर आपका बहुत सारा टैब खुल जाता है. यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं पासवर्ड, पेमेंट इन्फॉर्मेशन एंड ऑल द डिटेल्स ऑन द लेफ्ट साइड, जिससे आप अपने ब्राउज़र के सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं.
फाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्राउज़र सपोज मोजिला फायरफॉक्स, इसमें अपने सेटिंग्स को चेंज करने के लिए हम लोग वापस ऑप्शंस में जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस आएगा और इसके अंदर वापस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे सर्च, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, जैसा आपको सेटिंग्स चेंज करना है आप कर सकते हैं। और हम लोग एक देखेंगे गूगल क्रोम के बारे में। तो सपोज ये गूगल क्रोम है और क्रोम की सेटिंग्स चेंज करने के लिए हम लोग स्टूडेंट्स फिर से ये यहाँ जो ट्रिपल डॉट है इस पे जाएंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे सेटिंग्स के ऊपर और फिर ये गूगल क्रोम का जो सेटिंग्स ऑल्टर करना है हम लोग यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स ब्राउज़र सेटिंग्स, सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड ब्राउज़र्स के बारे में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे एड ऑन एक्सटेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपके वेब ब्राउज़र चैप्टर के अंदर। वेल, एड ऑन एक्सटेंशन क्या है? दीज आर टूल्स विच आर इंटीग्रेटेड इन आवर वेब ब्राउज़र। वेल, आप लोग अपने अगर कोई भी वेब ब्राउज़र खोलेंगे अपने लैपटॉप पे तो आप देखेंगे वहाँ पे एक अलग से ऑप्शन रहता है एड ऑन एक्सटेंशन। एड ऑन मतलब जैसे कि नाम समझ में आ रहा है कि कुछ हम एक एक्स्ट्रा फीचर अपने वेब ब्राउज़र में ऐड करना चाह रहे हैं ताकि वो एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज़ के साथ काम कर पाए। वेल, दीज आर सिमिलर टू अदर सॉफ्टवेयर्स बट दे रन ओनली व्हेन द वेब ब्राउज़र्स आर ओपन। सपोज आपने एक वेब एड ऑन इंस्टॉल करके रखा है तो वो तभी चलेगा जब आपका वेब ब्राउज़र खुला हो। एग्जाम्पल, सपोज आपको नेटफ्लिक्स की मूवीज़ जो है स्टूडेंट्स, आप नेटफ्लिक्स का ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते और इन मूवीज़ को आप वेब ब्राउज़र के अंदर देखना चाहते हैं तो आपको एक एड ऑन इंस्टॉल करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट सिल्वरलाइट का, जो एड ऑन आपको अलाउ करेगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से मूवीज़ देख पाएँ अपने वेब ब्राउज़र के अंदर। वेल स्टूडेंट्स, फिर ये इंस्टॉल कैसे होते हैं? इंस्टॉलेशन में हम लोग देखेंगे कि दो तरह से इंस्टॉल किया जा सकता है। एक तो एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन, मतलब आप फाइल अलग से एड ऑन का डाउनलोड करते हैं फिर उसको अपने वेब ब्राउज़र में जाके इंटीग्रेट करते हैं, ये हुआ एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन। और दूसरा वेब ब्राउज़र्स ओन एड ऑन सर्विस। कई सारे वेब ब्राउज़र्स हैं जैसे अभी हमने पढ़ा ओपेरा, गूगल क्रोम, ये सब का खुद का भी एड ऑन एक्सटेंशंस होता है, कुछ फीचर्स होते हैं जो वो प्रोवाइड करना चाहते हैं आपको एज एन एड ऑन। तो या तो हम एक्सटर्नली इंस्टॉल करते हैं या वेब ब्राउज़र के इनबिल्ट फीचर से करते हैं। नाउ हाउ टू अनस्टॉल देम? वेल, इट इज़ द सेम वे एज यू डू विथ एनी अदर सॉफ्टवेयर। जैसे हम दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे वैसे ही हम किसी भी एक एड ऑन को अनस्टॉल करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एड ऑन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लगइन्स के बारे में। वेल, प्लगइन्स क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो एक एड ऑन का काम करता है वेब ब्राउज़र के साथ। तो अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि डिफरेंस क्या है एड ऑन और प्लगइन के अंदर, कि क्योंकि हमने लिखा है यहाँ प्लगइन भी एक तरह का एड ऑन है। देन वेयर लाइज द डिफरेंस बिटवीन एड ऑन एंड अ प्लगइन? स्टूडेंट्स वेरी केयरफुली प्लीज लिसन टू दिस, कि एड ऑन जो है वो वेब ब्राउज़र के साथ इंटीग्रेटेड होकर ही काम कर पाता है, वो खुद में एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि प्लगइन खुद में एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है। आपका मन हो तो आप प्लगइन को एक अलग से सॉफ्टवेयर के तौर पे यूज़ करें या फिर आप प्लगइन को इंटीग्रेटेड कर सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र के साथ। So plugin is a complete program in itself, whereas an add-on is not a complete program in itself. A plugin can or cannot be integrated with a web browser, but an add-on has to be necessarily integrated with a web browser. And the third point is there, example. Well, here is an example of Microsoft Flash Player. It is a plugin. Microsoft Flash Player एक plugin है जो एनिमेशन कंटेंट प्ले करने के लिए यूज़ होता है, जो फ्लैश फॉर्मेट में होता है। तो ये था डिफरेंस प्लगइन और एड ऑन के ऊपर। स्टूडेंट्स, वेब ब्राउज़र के अंदर हम लोग आ गए हैं लास्ट टॉपिक पे, जो है कुकीज़। वेल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक से समझना है इसके फंक्शनैलिटी को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो वेल, कुकीज़ क्या है स्टूडेंट? खाने वाला तो कुकीज़ है नहीं, ये कुछ ना कुछ रिलेटेड है वेब ब्राउज़र के साथ, हम लोग देखेंगे क्या। तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं ये एक वेब ब्राउज़र है। मतलब वेब ब्राउज़र मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके मदद से आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सपोज ओपेरा या कोई भी एग्जाम्पल ले लो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। एंड सपोज आप अपने वेब ब्राउज़र में URL टाइप कर रहे हैं www.flipkart.com। सबको पता है ना स्टूडेंट्स, ये एक ई शॉपिंग वेबसाइट है। तो जैसे ही आप www.flipkart.com टाइप करते हैं वो रिक्वेस्ट चला जाता है फ्लिपकार्ट सर्वर के पास। फ्लिपकार्ट सर्वर के पास जैसे रिक्वेस्ट आता है तो फ्लिपकार्ट सर्वर आपको रिटर्न में आप उसका वेब पेज एक्सेस कर पाते हैं। फाइन। तो स्टूडेंट मान लेते हैं कि जब आपने flipkart.com खोला तो उसने पूछा आपसे आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो जैसे ही आपने लॉगिन किया कि भाई आईडी ABC और पासवर्ड XYZ, ये जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कम्प्लीटली आपके 12 लेवल तक है। अगर आप बाद में फिर इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इसको 12 तक के लिए समझेंगे।
तो जैसे हम लोग ID ABC और पासवर्ड XYZ के साथ लॉगिन रिक्वेस्ट भेजते हैं फ्लिपकार्ट सर्वर पे, फ्लिपकार्ट सर्वर क्या करता है, एक टेम्प्रोरी फाइल क्रिएट करता है जिसमें वो लिखता है कि ID क्या है ABC विथ पासवर्ड XYZ, आपने लॉगिन किया और आपने क्या क्या ब्राउज़ किया। सपोज़ जब आप वेबसाइट पे लॉगिन किए तो आप मोबाइल फ़ोन्स के बारे में ब्राउज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर वो इस फाइल में मेंशन करता है कि आपने मोबाइल फ़ोन्स के बारे में ब्राउज़ किया, आपका क्या प्रेफरेंसेस था, आपका क्या सिलेक्शन का तरीका था, वो सारा डिटेल वो सर्वर इस फाइल में स्टोर करता है। और जैसे ही आप मान लो फ्लिपकार्ट अब ब्राउज़र आप क्लोज करना चाहते हैं तो देखा होगा कि एक मैसेज आता है, डू यू वांट टू एक्सेप्ट कुकीज़। तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम फ्लिपकार्ट पे गए, चलो हमने जो भी ब्राउज़ किया वो यहाँ स्टोर है, अब जैसे ही हम ब्राउज़र क्लोज करने जाते हैं तो ये सर्वर इस फाइल को अपने पास से ट्रांसफ़र कर देता है आपके मशीन पे। ठीक है स्टूडेंट, ये फाइल ही कहलाता है कुकीज़। तो कुकीज़ फाइल क्या हुआ, दे आर, विल डिफाइन देम, लिख लो आप कि कुकीज़ आर अ स्मॉल बिट ऑफ टेक्स्ट फाइल्स विच कंटेन्स आवर लॉगिन इंफॉर्मेशन एंड आवर ब्राउजिंग डिटेल्स। तो सर्वर क्या करता है कि इस कुकी को हमारे अपने सिस्टम पे ट्रांसफ़र कर दिया और फिर सर्वर इसको अपने पास से डिलीट कर देता है। ऑब्वियसली ना, सर्वर अगर सबका कुकीज़ रखने लग गया तो फ्लिपकार्ट का सर्वर पे इतना स्पेस नहीं, या कोई भी सर्वर पे इतना स्पेस नहीं होगा कि वो मिलियंस ऑफ यूज़र की कुकी फाइल को ही अकेला स्टोर करके रखता है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो अगले बार मान लो नेक्स्ट दिन आप फिर से लॉगिन कर रहे हैं, आप गए फ्लिपकार्ट पे, आपका ID पासवर्ड ये था, तो आपके नेक्स्ट लॉगिन रिक्वेस्ट के साथ ये जो कुकी फाइल अब आपके सिस्टम पे पड़ा हुआ है ये साथ में चला जाता है सर्वर के पास। सर्वर इस कुकी फाइल को देखता है, वो पहचानता है अच्छा आपने लास्ट दिन क्या क्या किया था, वो उस हिसाब से आपको एक कस्टमाइज्ड वेब पेज बना कर देते हैं। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कुकीज़ का कि इट इज़ यूज्ड टू हेल्प to keep a track of user data so that the server can prepare a customized web page for that particular user। ठीक है स्टूडेंट्स, कुकीज़ के बारे में हम लोग 12 में इतना पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा आपसे होगा कि अगर कुकीज़ में इतना डेटा स्टोर हो रहा है तो क्या कुकीज़ हम लोग के लिए है ना डेंजरस है, इज इट अ थ्रेट टू नेटवर्क सिक्योरिटी? प्लीज़ कमेंट करें अपने ओपिनियन and let me know with the answers, and if you are not able to find out the answer, even then comment below so that I can discuss this in my next video. So students, today we covered one more important chapter from the unit networking which was all about web browsers. Well students, आप मेरे क्लासरूम के टाइम में जो भी बोर्ड पे नोट डाउन है वो प्लीज़ अपने नोट कॉपी में भी लिखते रहेंगे ताकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम्स के टाइम। My videos are specially for 2021 board appearing candidates. I hope आपको आज का क्लास समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे। कोई भी क्वेरी रहता है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं and we'll cover this in the next video. So students, till then keep studying, take care and stay blessed.